Hello friends, welcome back to the channel Writing Buddha. So today we are going to speak about the book What the Heck Do I Do With My Life, written by Ravi Venkatesan. So as written on the cover page of the book itself, the book basically speaks about the topic how to flourish in our turbulent times. So as all of us know that the times are changing, the way technology is overcoming us as a human beings, is everything is changing. So author here basically discusses that how we can, move from one dimension to the another dimension when this major shift is happening. So author starts with giving example of artificial intelligence, that how artificial intelligence is conquering us and it is changing everything around us, and we are already seeing the changes, and we are also talking about metaverse and different things, what has been the challenges, how we are losing the job, how we are creating new jobs. And then author tells how climate change is going to create a new industry altogether in some years from now onwards, क्योंकि आपको पता ही है, we are already talking about removing carbon footprints and so much about climate and nature and environment is happening every day. न्यूज़ चैनल अगर आप देखते हैं तो इससे यही बात हो रही होती है about air pollution and everything. So author tells कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये IT बूम से 10x टाइम्स ज़्यादा बड़ा बूम होने वाला है, एंड पीपल आर गोइंग टू बी जस्ट शॉक विद द वे इट इज़ गोइंग टू पुल ऑल द इंडस्ट्री एंड ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग टुवर्ड्स इट. ही गिव्स अस सम एग्जांपल कैसे कुछ लोगों ने अभी से ही काम करना चालू कर दिया है. सो ऑथर टेल्स अस कि हमें अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर दिस न्यू रिवॉल्यूशन इन द इंडस्ट्री दैट इज़ हैपनिंग. और अगर हम सर्विस सेक्टर से आते हैं, इफ़ वी आर द पीपल फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, सो वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स टू बी पार्ट ऑफ दिस न्यू रिवॉल्यूशन, दिस न्यू इंडस्ट्री, बाय मेकिंग सम चेंजेस टुवर्ड्स वे ऑफ लर्निंग, और थोड़ा बहुत इस तरफ भी जानने के लिए. एंड ऑथर का एक बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पे ना एक लॉजिक लगा, जहाँ पे वो बताते हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट रहना जो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही है, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते. वेरेस अगर आप एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में हो तो आप अगर उसका छोटा सा भी एक पार्ट हो ना, सो यू कैन फाइंड योरसेल्फ ग्रोइंग वेरी फास्टर. एंड आई बिलीव इट बिकॉज एक IT इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी पोजीशन पे हो, गेटिंग द प्रमोशंस, गेटिंग द गुड पैकेज इज़ वेरी ईजी. सिमिलरली अगर आप एक ऐसी किसी भी इंडस्ट्री में रहो जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो आपको उसका रिफ्लेक्शन अपने करियर में, फाइनेंस में, सिक्योरिटीज़ में हर जगह देखने को मिलता है. सो दैट इज़ हाउ ऑथर बिगिंस द बुक अबाउट टॉकिंग about the kind of times that are changing currently. Then author discusses about the mindset, जहाँ पे वो दो तरीके के mindset comparison की बात करते हैं. एक है fixed versus growth mindset, दूसरा है abundance versus scarcity mindset. So this explains why we think the way we think, और but he also gives us assurance that even if we belong to one kind of a mindset which is not very favorable, but we can still change it for our good, and it will change our mindset, it will reshape our life, it will shape everything the way we think, and it will take us towards betterment. So that is a very good positive insight that he gives in this particular chapter. Then author moves on to the another chapter where he talks about some meta skills that he believes is required to survive or to grow in this current turbulent times, जहाँ पे वो बात करते हैं about AI age, और उसमें एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट कितना ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो कि जॉब क्रिएट करे, कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करे, AI को और अच्छे तरीके से हम लोग यूटिलाइज कर सकें जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो. देन ही टॉक्स अबाउट एजिलिटी, ही टॉक्स अबाउट लीडरशिप एंड पीपल स्किल्स एज सम मेटा स्किल्स दैट आई डिस्कस्ड, जिसमें से उनको लीडरशिप इतना पसंद आया दैट ही डेडिकेटेड अ होल चैप्टर ऑन लीडरशिप वेर ही फोकसेस कि टू बी अ गुड लीडर ज़रूरी नहीं है कि आप एक लीडरशिप पोजीशन पे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक CEO हो, आप एक मैनेजर हो. इवन इन योर लिमिटेड आर्किटेक्चर ऑफ योर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू कैन स्टिल बी अ लीडर. और वो इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही बड़े तरीके से बात करते हैं. एंड मुझे ये चैप्टर कहीं ना कहीं रॉबिन शर्मा का जो किताब है द लीडर विथ नो टाइटल, समथिंग लाइक दैट, उससे काफ़ी मिलता जुलता लगा, बट इट इज़ डेफिनेटली इंस्पिरेशनल. Then author moves on to another chapter where he talks about money, और हमारा मनी के साथ कैसा रिलेशनशिप है, और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपके लिए एनफ है, क्योंकि ये एक ऐसा रेस है जिसका कोई एंड नहीं है अगर आप चालू हो जाएं, अगर उसकी तरफ भागना है, उसके पीछे भागना. तो ये चैप्टर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, जहाँ पे वो पैसों के बारे में बात कर रहे होते हैं. बहुत ज़्यादा डिटेल में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह वो बात नहीं करते, बट उतना बात ज़रूर करते हैं कि आप थोड़ा सोचने लगेंगे अगली बार पैसे के बारे में. फिर ऑथर एक ऐसे फैक्टर की तरफ आते हैं कि क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है, तो वो बता रहे होते हैं कि हाउ यू कैन बी अ बेटर पर्सन
बेटर पर्सन फ्रॉम दी फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो वो बात कर रहे होते हैं कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट की कि मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जहाँ पे हम कम से कम चीज़ों के साथ रहना सीखें, डिक्लटरिंग अ स्पेस जहाँ पे हम एक चीज़ लाएं तो दूसरी चीज़ बाहर भी निकालें, अपने घर को भरते ना जाएं, ऑप्टिमाइजिंग टाइम बिफोर मनी, बिकॉज टाइम हमको सबको पता है कि सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स हमारे पास वही है, मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस टाइम का है, बिकॉज इफ़ वी हैव टाइम वी कैन जनरेट मोर, बट इफ वी डोंट हैव टाइम इवन इफ वी हैव लॉट ऑफ मनी वी कैन नॉट मल्टीप्लाई इट। तो वो एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, सेविंग्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जनरेशन के लिए जो क्रेडिट कार्ड पर जीना सीख गए हैं। सेकेंड लास्ट चैप्टर है जहाँ पे वो 10 प्रैक्टिकल आइडियाज़ देते हैं कि आप अपने करियर में कैसे नेविगेट कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं ये जो 10 आइडियाज़ हैं, एवरी टाइम आई वाज रीडिंग ईच ऑफ देम आई वाज जस्ट थैंकिंग ऑथर टू ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है कि बहुत ऑब्वियस है बट हम कभी सोचते नहीं उस बारे में। एंड व्हेन ऑथर पॉइंटेड आउट आई वुड से इट वाज जस्ट मिराक्युलस, एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड व्हाट आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक व्हिच आई विल टेल एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल चैप्टर। आई वुड से इन केस यू डोंट हैव टाइम जस्ट रीड दिस चैप्टर एंड योर लाइफ विल एनीवेज चेंज। लास्ट चैप्टर इज़ वेयर ऑथर थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बाहर आके स्पिरिचुअल साइड में चले जाते हैं और वो हमें हैप्पीनेस और सक्सेस के बारे में बात करते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, हाउ शुड वी डिफाइन, बिकॉज बोथ हैप्पीनेस एंड सक्सेस आर वेरी सब्जेक्टिव। कि मेरी जो खुशी है मे बी वो आपके लिए खुशी ना होगा, मेरे को किताब पढ़ना खुशी देता है, ज़रूरी नहीं है आपको किताब पढ़ना खुशी देता हो, आपको ट्रैवलिंग देता होगा, मुझे ट्रैवलिंग नहीं देता फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि सबके हैप्पीनेस और सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आप खुश हैं या सक्सेसफुल हैं उस बिहाफ पे कि किसी और का डेफिनेशन क्या है, सबका डेफिनेशन अलग अलग होता है हैप्पीनेस और सक्सेस का। तो दिस इज़ अ वेरी गुड चैप्टर, वेरी गुड आई ओपनर फॉर द पीपल हु डोंट थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव और हमेशा दुखी रहते हैं और हमेशा अपने आप को अनसक्सेसफुल या फेलियर मानते हैं। देन इस पूरी किताब की बहुत अच्छी बात है कि हर एक चैप्टर के बाद ऑथर ने की आइडियाज़ दिए हुए हैं जो आप मेजर उठाओ और अपने पास रखो। सो इवन इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दिस बुक एंड यू वांट टू गेट बैक टू इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन जस्ट गो एंड रीड दिस पार्ट एंड यू विल गेट द मेजर टेक अवेज फ्रॉम द चैप्टर। सेकेंडली मैं बोलूँगा कि हर चैप्टर के बाद एक उन्होंने ग्रे एरिया भी दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कभी कभी किसी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला है। तो जब वो हो रहा होता है और जब आप उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको अपने लाइफ के बारे में पता चलता है कि आपने कितने चीज़ों को तो बस ऐसे ही कर दिया और आप कितने अनक्लियर हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ के कुछ फेजेस के बारे में। देन आई वुड से कि ऑथर though he tried to give his original points but he never shied away from sharing the quotes from the other books, other authors, from the psychologist, or taking statements from other personalities and trying to prove the point that he wanted to. So that's a very good thing because along with what he thinks you also get to know about bigger things that other bigger people have said somewhere else. Language is very simple and I would say thankfully the author has used the friendly and amicable language that anyone can go through. This is just 180 pages book. So just imagine a self-help book, a motivational book in just 180 pages can really transform your life in very limited time frame itself. So I would say that picking this would not be a very bad decision for you. And author ये मानते हैं कि इसमें कोई भी नई बात नहीं कही गई है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में और पिछले कुछ अच्छे लोगों ने, बड़े लोगों ने इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बोला जा चुका है ये सारी चीज़ें। बट वो कहते हैं क्योंकि करंट टाइम्स चेंज हो चुका है और वो आज के तरीके से बताने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस से, तो उन्होंने इसके लिए किताब लिखी। अदरवाइज ही इज़ एक्सेप्टिंग इट्स दैट इट डज नॉट हैव एनीथिंग न्यू। और आई वुड से कि अब चूंकि मैं ये किताब ख़त्म कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं इस पे बिल गेट्स ने भी इसको पढ़ के रिव्यू दिया है, अपने सत्य नाडेला ने इसको पढ़ के रिव्यू दिया है, नंदन नीलेकानी, किरण मजुमदार शॉ, पीवी सिंधु हु इज़ अनदर आइडल दैट कीप इंस्पायरिंग मी। सो इस बुक को काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने पढ़ के अपना एक्सेप्टेंस दिया है एंड आई वुड से दैट इवन व्हेन आई हैव रेड इट नाउ आई कैन फाइंड द चेंज हैपनिंग इन मी। देयर आर सर्टेन चेंज दैट आई एम realizing in my thoughts after reading this book, and I have had so many notes. You can see I have marked it here in pencil. So yeah, about rating I would say that I give this book 5 out of 5. So yeah, I generally don't do this, I'm not that lenient towards books, but yeah, this book deserves 5 out of 5 rating because there is nothing wrong in it, and after reading it you will surely improve and your whole mindset is going to change. So yeah,
please do read this book as and when you get time. It's not very expensive. It's published by Rupa in just 400 rupees, and you will get it for lesser on Amazon or Flipkart. I'll share the link in the description. If you like this video, please like and share it, and if you have not subscribed the channel yet, please do subscribe. Thanks a lot.